Now we will do English fragrance. In English fragrance, we had completed till chapter number 7, and now we are going to do chapter number 8, Sona and her magic shoes. In this chapter, we will read about Sona and her magic shoes. There is a short story about Sona. Sona is very excited when she finds a pair of magic shoes. सोना को एक मैजिक शूज की पेयर मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाती है. देन व्हाई डज शी फील हैप्पी इवन आफ्टर लूजिंग इट. फिर वो जो उसको पेयर ऑफ मैजिक शूज मिलता है तो वो फिर उससे खो जाता है, उसके पास वो नहीं रहता है, तो फिर भी वो बहुत खुश होती है. तो वो क्यों? तो फॉर knowing that what was the story we will see in this chapter. Sona always dreams of flying. She dreams that she is flying like a bird in the sky. She sees herself making new friends every day. Only if I could really fly, mutters Sona to herself, but that is just a dream, she adds sadly. दिस इज द स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेम्ड सोना. ये जो कहानी है वो सोना की है कि वो हमेशा ऐसा सोचती थी, उसको ऐसे सपने आते थे या वो सपने में ये देखती थी कि वो उड़ रही है. शी ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग, उसे उड़ना बहुत पसंद था. शी ड्रीम्स दैट शी इज फ्लाइंग लाइक अ बर्ड इन द स्काई, वो बर्ड की तरह उड़ रही है ऐसा उसे हमेशा सपने में दिखता था. शी सीज हर सेल्फ मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एवरी डे, और उसको हर रोज नए नए फ्रेंड्स बनाती थी. ओनली इफ आई कुड रियली फ्लाई. और फिर वो मटर सोना टू हर सेल्फ. मटर्स मीन्स वॉट, मतलब अपने मन में ही वो सोचना, या मतलब अ, अगर देखो कई बार कैसा होता है कि आपको अगर कुछ कहीं जाना होता है या आपको अगर कुछ चीज चाहिए, जैसे कि आप चॉकलेट के लिए अगर मम्मी को बोलते हो तो मम्मी मना कर देते हैं. तो फिर तो उस समय आपको गुस्सा आता है तो आप ऐसे मुंह लटका के फिर ऐसे सोचते हो, मम्मी भी क्या ऐसे भी मुझे चॉकलेट नहीं दे रही है. अगर आपको कहीं बाहर जाना है और फिर मम्मी मना कर देती कि नहीं अभी बाहर नहीं जाना है, आपको टीवी देखना हो, और आप टीवी के लिए मम्मी मना करती है, तो अब आप उस समय क्या होते, मम्मी को सामने नहीं बोल सकते हो, तो मतलब अपने मन में ही बोलते हो या अपने मुंह से भी बोलते हो तो एकदम धीरे से बोलते हो, मम्मी भी क्या ऐसे हमारी बात नहीं मान रही है, ऐसे ऐसे. तो दैट इज कॉल्ड मटरिंग. मतलब जो भी आपके मन में है वो आप एकदम धीरे से, धीरे आवाज में जो बोलते हो उसे बोलते हैं मटर्स. सो सोना भी ऐसे ही बोल रही थी, बट दैट इज जस्ट अ ड्रीम. उसको लगता था कि उड़ना मतलब कि वो एक सपना ही है. वो सोच के उदास होके वो ऐसा सोच रही थी. वन डे while returning from school, she spots something glittering beside the path. She looks at it closely. They seem like a pair of shoes, but with a difference. The shoes have a pair of golden wings that shine in the sun. फिर जब वो एक दिन स्कूल से लौट रही थी तब उसने क्या देखा, ग्लिटरिंग बिसाइड द पाथ, मतलब रास्ते पे कुछ एक चमकती हुई चीज देखी. फिर वो नजदीक जाके उसने देखा कि वो था पेयर ऑफ शूज. इट वॉज द पेयर ऑफ शूज, बट इट वॉज डिफरेंट. what is the different in that shoes? So that shoes have a pair of golden wings and that shine in the sun. Now will Sona pick up the shoes? क्या सोना वो शूज ले लेगी? Sona looks at them in wonder. She says, what a lovely pair of shoes. I am sure
They are magic shoes. Let me wear them. She puts on the shoes. Then she looks at them with wonder, and she was thinking that what a lovely pair of shoes. She feels that it might be magic shoes. Then she puts on the shoes. How beautiful they look, she says while putting them on. And whenever she was putting the shoes, she was thinking, it's too beautiful. As soon as she puts on shoes, something strange happens. Sona starts flying. She flies like a bird. She flies and visits beautiful lands. This is just like my dream, she thinks. I can't believe I am flying. She meets birds, bees, butterflies, and clouds. She tells them, hello, not only you, but even I can fly. Everyone smiles at her. They are now friends. Now, whatever Sona want to do, that she want to fly, and after wearing the shoes, she can fly. So she flies and visits so many beautiful lands, and now she can meet all the birds, and afterwards afterwards she also feel and tell them, now not only you, I also can fly. And now they all are, means that butterflies, bees and clouds, they are now Sona's Sona's friends. Now here is a small question is there. We say flies like a bird. What word do we use for swims like a dash? So if we say flies like a bird, then swims like a snake, fish or frog. We can write here frog, sorry, fish. The next morning, Sona sets off for school. She puts on her shoes and her flight starts. As soon as she reaches school, she sees her friends starting at her. Hello, friends. Don't look surprised. It's me, Sona. I have put on magic shoes. Her friends look at her in amazement. Amazement means आश्चर्य से सब लोग देख रहे थे कि ये सोना उड़ के यहाँ पर कैसे आ गई. Every day Sona starts coming to school wearing her magic shoes. She notices that her friends are not happy to see her. Now, as Sona has these magic shoes, she is coming to school wearing these magic shoes only. But her all her friends were not happy because they don't like how she is coming to school. They also want that shoes. Hi friends, I am here. Why are you all not talking to me? Are you angry with me? Her friends don't talk to her. To please them, she offers them her shoes. You can borrow my shoes. You are my friends. Friends are for sharing things, says Sona. All her friends run to grab the shoes. They start fighting over them. Now, all the friends were not talking to Sona, so one day she asked her friends why they are not talking to her, and she told them, you all are my friends, and friends are for sharing. So, if you want to wear my shoes, you can borrow her shoes. She told them like that. So, all her friends run to grab the shoes. मतलब सारे उसके friends थे वो shoes लेने के लिए आ गए और they start fighting over them और फिर एक दूसरे के साथ fighting करने लगे. I will wear them, shout one. No, how dare you, screams another friend. One was saying I will wear them and another was screaming मतलब चिल्लाने लगा, no, how dare you,
तुम कैसी हिम्मत कर सकते हो, पहले मैं पहनूंगा। मतलब ऑल द फ्रेंड्स दे ऑल आर स्टार्टेड फाइटिंग। सोना गेव द शूज टू मी, सेज द थर्ड। तीसरे फ्रेंड ने बोला कि सोना तुम ये शूज मुझे दे दो। द शूज आर पुल्ड एंड थ्रोन, दे आर torn to pieces. Sona looks at her friend fighting for the shoes and feels very sad. She starts crying. Seeing Sona cry, her friends realize their mistake. अब जैसे सारे दोस्त को ये शूज चाहिए थे तो सारे मिलके वो शूज लेने के लिए फाइटिंग करने लगे, और जो शूज थे वो एक दूसरे के साथ खींचते गए, तो उसमें क्या हुआ कि वो जो उसके शूज थे वो पूरे फट गए, पूरे टूट गए। तो ये देख के सोना को रोना आ गया, और फिर जो उसके सारे फ्रेंड्स थे उनको अपनी गलती थी वो उनको समझ में आई। दे रियलाइज देयर मिस्टेक कि हमने ये फाइटिंग करके उसके जो शूज तोड़ दिए वो हमने अच्छा नहीं किया। तो सारे फ्रेंड्स को उनकी मिस्टेक रियलाइज हो गई। वी आर वेरी सॉरी सोना, वी वेर जेलस ऑफ योर शूज, सेज वन फ्रेंड। फिर सोना के एक फ्रेंड ने उसको बोला कि हम वी आर सॉरी, क्योंकि हमें तुम्हारे ये जो शूज थे उसके उससे जलन होती थी। वी वर जेलस ऑफ योर शूज। वी हैव बीन वेरी सेल्फिश, वी आर अशेम्ड ऑफ अवर बिहेवियर, सेज अनदर फ्रेंड। फिर दूसरे फ्रेंड ने बोला कि हम बहुत सेल्फिश है। सेल्फिश यानी कि स्वार्थी, मतलब खुद को जो चीज चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, हम दूसरों का नहीं सोचते। एंड वी आर अशेम्ड ऑन ऑफ आवर बिहेवियर। अशेम मीन्स हमें बहुत शर्म आती है हमारे बिहेवियर, यानी कि हमने जो फाइटिंग की है और तुम्हारे शूज जो तोड़ दिए उसके लिए हमें बहुत शर्म आती है। प्लीज फॉरगिव अस एंड बी आवर फ्रेंड वंस अगेन, दे ऑल से ऑल टुगेदर। और फिर सारे फ्रेंड्स थे वो सब ने उनको सोना को सॉरी बोला, और फिर बोला कि हमें माफ कर दो। फॉरगिव अस मीन्स हमें माफ कर दो, और हम फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। सोना इज वेरी हैप्पी टू गेट बैक हर फ्रेंड्स, आई एम सो हैप्पी, सेज सोना। फिर सोना भी खुश हो गई क्योंकि अब उसके दोस्त उसको वापस मिल गए, मतलब अब उसके सारे दोस्त उसके साथ है, उसके साथ बात कर रहे हैं, और वो खुश हो गई सोना। दो आई डोंट हैव माई शूज नाउ, आई स्टिल हैव माई डियर फ्रेंड्स। Good friends never fight. We will be good friends and never fight with anyone. Yes, we all agree. They all say together. Sona's face lights up with a smile. अब जब उसके सारे दोस्तों ने उसको सॉरी बोल के उसको मना लिया था, तो सोना भी बहुत खुश हो गई थी, और सब लोग एक दूसरे से मिलके सारे फ्रेंड्स अब अच्छे फ्रेंड बन गए, गुड फ्रेंड्स बन गए, और अब वो एक दूसरे से कभी भी फाइटिंग नहीं करेंगे। ऐसा सोच के सब लोग अच्छे से अच्छे फ्रेंड बन गए, और सबने यही बोला। और ये देख के सोना बहुत खुश हो गई। उसके सोना फेस लाइट्स अप, मतलब उसके फेस पे लाइट आ गई। वो स्माइल करने लगी कि चलो कोई बात नहीं, मेरे शूज अगर टूट गए पर मेरे सारे फ्रेंड्स तो मेरे साथ है। तो ये सोच के वो खुश हो गई। तो जैसे कि हमने पहले ही स्टोरी में जब स्टार्ट की तभी हमने देखा था कि सोना को वो शूज मिलते हैं, और अगर वो उससे खो जाते हैं तो फिर भी वो क्यों खुश हो जाती है। तो उसका यही आंसर है कि सोना को शूज खोने का दुख नहीं है, पर उसके फ्रेंड्स जो उसके वापस मिल गए, जो फ्रेंड्स जो उससे रूठे हुए थे वो सारे फ्रेंड्स उसको वापस मिल गए, इसीलिए वो बहुत खुश हो गई। सो लिसन एवरीवन, यू डोंट हैव टू फाइट विथ योर फ्रेंड्स। आपको अपने फ्रेंड के साथ कभी फाइटिंग नहीं करनी है, बिकॉज यू ऑल आर गुड children and you have to uh, say you have to live with your friend very nicely. Okay, so I hope all of you understood this. Read this chapter from the textbook and you will understood this story
again. Okay, thank you and have a nice day.